ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि इसकी वरतों करने वाली औरत की लोकेशन बारे भी जानकारी मिलती रहेगी। इसमें नीचे ये छोटा एक बटन है, इस बटन को प्रेस करते के साथ ही आपने अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से जो भी इमरजेंसी नंबर्स कॉन्टैक्ट में डाल रखे होंगे उनके पास इमीडिएटली मैसेज चला जाएगा हेल्प मी, और हर 2 मिनट में ये डिवाइस आपकी करंट लोकेशन अपडेट करेगा। इस डिवाइस ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। A woman can wear it as a part of a necklace, a wristband, or even a belt loop. And if she ever finds herself in a dangerous situation, rather than reaching into a purse or a bag, which the perpetrator may not allow, she simply has to reach for the button and press it. ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सवाल यह है कि रोडवेज विभाग ਨੂੰ करोड़ों का घाटा क्यों हो रहा है? इस दे लई जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पीछे देखिए और दूर तक देखते चले जाइए और गिनते चले जाइए कि कितनी बसें हैं। आमतौर पर किसी बस अड्डे में इतनी बसें नहीं खड़ी होती जितनी इस वक्त हिसार की इस रोडवेज की वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी लापरवाही की गवाही दे रही हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ 500 ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ स्थिति ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਦਾਰਦ ਨੇ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घाटा रोडवेज के कर्मचारी की वजह से नहीं, बल्कि जो उच्च अधिकारी और सरकार का जो मैनेजमेंट है, जो मिसमैनेजमेंट है, वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। टायर, फ्रंट ग्लास ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਸਾਂ ਬੇਕਾਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। रोडवेज ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर सवाल ये है कि इस दे ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कौन है? पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास जो नए टायर थे वो कम मात्रा में आ रहे थे। रिसोलिंग प्लांट की प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। अब जो है विभाग द्वारा नए टायर का टेंडर कर दिया गया है और जल्द इस समस्या को सुलझा लेंगे। कुछ बसें हमारी जो है ना टायरों के साथ साथ गिलास, जो फ्रंट का गिलास उसके लिए भी खड़ी है, उसका भी टेंडर हो रखा है। वो जल्द ही वो गिलास भी हमारे को मिल जाएंगे और ये बसें ऑन रूट कर दी जाएंगी। ਹੁਣ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। करीब 6 साल पहले ऐसी 46 आलीशान एसी बसें हरियाणा रोडवेज ने अपने बेड़े में शामिल की थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अपने किलोमीटर पूरे किए बिना ही ये बसें अलग अलग खराबी की वजह से अलग अलग वर्कशॉप्स में खराब होकर खड़ी हो गई। ऐसी बसें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से खड़ी हैं, इनमें तकनीकी प्रॉब्लम रही है, इनके ऑपरेशन के अंदर काफ़ी खर्चा होता है, तो इस वजह से इनको बार बार रिपेयर किया गया, ये रूट पे चलने के काबिल नहीं रही, इस वजह से इनको खड़ा किया गया। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ कि समस्या का हल छेती होगा। क्या जल्दी हमारे पास जो है ड्राइवर जो है ना हमने भर्ती हो भी गए हैं, कुछ तो हमारे पास आ भी गए हैं, वो अंडर ट्रेनिंग है। जो ही उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा उन बसों को बिल्कुल रोड पर ला करके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाएं मिल सके। कहने की जरूरत नहीं है कि हालात
सच में बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे में अपील सरकार से है कि जब भी वो रोडवेज में घाटे की दुहाई दे या फिर किराया बढ़ाने के बारे में सोचे तो एक बार खुद की लापरवाही और ढुलमुल रवैये की गवाही देती हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप्स पर भी नजर डाल ले। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र और प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਟੈਲਗੋ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਲਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ट्रायल ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ रफ्तार 115 किलोमीटर ही सी। देखिए, पिछला ट्रायल जो था एक तो हमारे मेन लाइन सेक्शन पे था, ये ट्रायल हमारा राजधानी रूट पर है, जो गतिमान एक्सप्रेस का भी रूट आप जानते हैं इस सेक्शन में। तो इसमें हम स्पीड जो है 80 किलोमीटर से 180 तक ले जाएंगे। ਟੈਲਗੋ ट्रेन ना सिर्फ रफ्तार के मामले च बेहतरीन है, सगों मुसाफिरां दी सहूलत के लिहाज नाल भी चंगी है। इंटीरियर में अगर हम बात करें तो सीट की जैसा कह रहे हैं कि बनावट काफ़ी कंफर्टेबल है, सामान रखने के लिए रैक काफ़ी अच्छा है। बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट के लिहाज से बेहतर है। अगर आपका जो सफ़र है वो 4 से 5 घंटे है। टैलगो स्पेन तो लियांदी गई ट्रेन है जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चल सकती है। टैलगो का पहला ट्रायल बरेली विच होया सी, तीजा ते आखिरी ट्रायल दिल्ली तो मुंबई के विचाले होवेगा। टैलगो का ट्रायल कामयाब होने ते दिल्ली तो मुंबई के सफर विच तकरीबन 5 घंटे की कटौती हो सकती है। भारत विच फिलहाल गतिमान एक्सप्रेस सब तो तेज ट्रेन है। दिल्ली तो आगरा के विचाले चलने वाली गतिमान की वधोवध स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ। ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੌਰਨ ਨੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੌਰਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। न्यूयॉर्क की लॉरेन कूड़ा कचरा देख के परेशान हो जाती है। हर पल यही सोचती है कि वातावरण को किवें साफ अते शुद्ध रखा जाए। वो अजिहा की करे कि घट्टो घट्ट वातावरण को साफ रखने में अपना योगदान दे सके। लॉरेन खुद वातावरण विज्ञान की स्टूडेंट रही है, वातावरण को ठीक तरह नाल समझती है। वो जानती है कि वातावरण को ठीक ना रखा गया तो वातावरण संपूर्ण मनुखी प्रजाति को ठीक नहीं रखेगा। आखिरकार लॉरेन ने रस्ता कढ ही लिया। फैसला लिया कि वो अपने लाइफस्टाइल नूं ही बदल देवेगी। जिस किसी आदत नाल वातावरण में गंदगी फैलती है उस आदत नूं ही बदल देवेगी। Studying environmental studies, and one day after class I went home to make dinner and I opened my fridge and I saw that everything in there was packaged in plastic. And I felt like such a hypocrite. We're supposed to be saving the planet, and here you are making all of this trash. I feel like it's really important to live your values, and my values are having a really low environmental impact. I have to live like I want that, and so that's why I decided to change my lifestyle. लॉरेन ने अपने लाइफस्टाइल विच बदलाव करके कूड़े के जंजाल तो आज़ादी पा ली है। लॉरेन की कोशिश हुंदी है कि वो अजिहे सामान खरीदे जो रीसाइकल हो सकन। प्लास्टिक दे पैकेट वाला सामान लॉरेन कदे नहीं खरीदी। I didn't have to do that much to produce very little waste, and by composting and buying in bulk, I essentially eliminated 80% of my waste. Buying package free means needing to have containers to buy things that you can't. लॉरेन ने टूथपेस्ट बाजार तो खरीदण की बजाय घर विच ही तैयार किया। लॉरेन ने नारियल के तेल, बेकिंग सोडा ते ऑर्गेनिक पुदीने तो टूथपेस्ट बनाया। प्लास्टिक के टूथपेस्ट के बजाय बांस तो बने ब्रश को इस्तेमाल किया। लॉरेन कपड़े के थैले लेके बाजार जाती है। खाण पीण दी चीज़ों के लिए कच के भांडियां का इस्तेमाल करती है। बाहर तो खाना भी कपड़े या पेपर बैग विच ही पैक कराउंदी है। लॉरेन दे कोल जो कचरा मिले वो अजिहा समान है जिसनूं रीसाइकल करना मुश्किल सी, जिद्दां कि फलां ते लगण वाले स्टिकर अते कपड़ियां ते लगा प्राइस टैग। खुद ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਲੌरेन ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੂੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚੇ।
ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੌਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਰਨ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ अंगूर की खेती की शुभ शुरुआत की और नतीजे भी आने शुरू हो गए। इस समय तो मतलब पायलट है हमारे यहाँ। इसका फल जो है कि लगभग मई और जून में पक जाता है, जो कि कहीं पर नहीं पकता है। इससे इसका क्या नाम है कि इसमें जो है कि अच्छा पैसा मिलता है, इसीलिए लगाना चाहता हूँ। अंगूर की खेती के लिए गर्मी का मौसम अनुकूल मनिया जाता है। कंकरीली, रेतीली और दोमट मिट्टी तो उगण वाले अंगूर चंगे फल दे रहे हैं। कई वरियां तक सोके नाल जूझदे किसानां दी रवायती फसलां उत्पादन ना दे बराबर रह गया सी। लिहाजा मौसम के इस बदलाव तो परेशान किसानां ने खुदकुशी का नहीं बल्कि अंगूर की खेती अपना के जिंदगी सवारन का रस्ता चुनिया। नतीजे चंगे आ रहे हैं ते नेड़ले किसान भी रवायती खेती छड्ड के अंगूर की खेती नूं अपना रहे। सुझाव दिए जा रहे हैं और हमारे यहाँ तैयार भी कराए जाते हैं पौधे, उनको वितरित किए जाएंगे, बेचे जाते हैं। किसी का अंगूर नहीं होगा, आपका अंगूर होगा तो उसके फायदे होंगे, किसान को ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। अंगूर की सब तो प्रचलित किस्म पार्लेट इन्हीं दिनी इलाहाबाद के नेड़े तेड़े के किसानां दी पसंद बनी हुई है। अंगूर की दूजियां किस्मां बैंगलोर ब्लू, अबने शाही और दूसरी बिना बीज दीयां किस्मां इत्थे हले कामयाब नहीं। इलाहाबाद के कई सरकारी बागां विच अंगूर के पौधों की नर्सरी तैयार हो रही है, क्योंकि पूरे इलाके विच अंगूर के पौधों की मंग बहुत बढ़ चुकी है। किसान हुण रवायती खेती का त्याग कर अंगूरां की व्यवसायिक फसल नूं पैदा करन दा जोखिम लै रहे ने। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद।